Dear students, in this video we will do question answers of friction chapter. Let's enjoy. Fill in the blanks. First, the force responsible for wearing out of bicycle is friction. Second, ball bearing dash friction. Ball bearing reduces friction. Third, streamline shape of a moving object reduces dash friction, that is fluid friction, because streamline shape always reduces the fluid friction. D, the friction that comes into play when the object just starts sliding over the other is called limiting friction, because in the limiting friction objects just start moving. Now, what is friction? On which factor does it depends? Friction, the opposing force that comes into play whenever an object tries to slide over another object, is called frictional force. Frictional force means this is the opposing force, and it will be experienced when two surfaces will be in the contact. Always it will resistance to motion, and it depends on two factors. One is nature of the surface in contact, and another is how hard the object are pressed with each other. Next question is, what is the cause of friction? The cause of friction is the irregularities on the surface of moving object, because of which their surface tends to stick together like the tiny loops and hooks of velcro. Means friction force will be caused due to the irregularities. Whenever you will see the surface from the microscope, then it will look like a hill and valleys. Bumps will be there. That irregularities only causes the friction. Next question, what are different types of friction? Define each. So there are four types of friction. One is static friction, second limiting friction, third kinetic friction, and fourth is rolling friction. In a static friction, the frictional force that comes into play when the object is at the rest is called the static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन में बेटा क्या होगा कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मोशन नहीं करेगा, और मोशन नहीं करेगा तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहता है, वो मोशन नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. इसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग ओवर द अदर इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि जब अब जैसे हमने फोर्स लगाना शुरू किया तो वो उसी वक्त स्टार्ट करेगा दूसरे सरफेस के ऊपर क्या करना, स्लाइड करना. जब वो किसी सरफेस पे तो उस सरफेस पे वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो वो आपका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है. इसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या है, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक फोर्स लगेगा, उसका नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है. फिर रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है कि when the object rolls over a surface the friction that comes into play is called the rolling friction. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोल करना शुरू कर देगा किसी सरफेस के ऊपर, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका नाम क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? In this, one side advantages and other is disadvantage. We will discuss. In advantages, friction between our foot and the ground allows movement such as standing, walking, running. This is only due to the friction. The next point, we can ride because of the friction. Third point, vehicles can move because of friction force, because between the surface of the road and tire of a vehicle allows the vehicle to move without slipping. Next, we light a matchstick by using friction. As we stick a matchstick
फ्रिक्शन क्रिएट्स इनफ हीट टू इग्नाइट द केमिकल्स इन द मैचस्टिक। इट मीन्स कि फ्रिक्शन के हमारे फ़ायदे क्या हैं। फ्रिक्शन के फ़ायदे में सबसे पहले है, जब दो मतलब फीट्स और ग्राउंड के बीच में, यानी दो सरफेस के बीच में मोमेंट होगा, या उस वक्त ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा स्टैंड होने में, वॉक करने में और रन करने में। फिर अगला है कि फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, वी आर एबल टू राइट ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, व्हीकल कैन मूव बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अदरवाइज़ क्या होगा, सरफेस जो है, टायर जो है, उसकी रफनेस इसको क्या कर रही है, अलाउ कर रही है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो मैच स्टिक है उसको जब अपनी रब करेंगे मैच स्टिक को सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शन क्रिएट क्या करेगा, हीट क्रिएट करेगा और वो से इग्नाइट हो जाएगी, नहीं वो जल उठेगी और एक केमिकल रिएक्शन होएगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं फ्रिक्शन के, कि फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, रन कर सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से हम लिख सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से व्हीकल्स जो है वो रोड पे चल सकते हैं और फ्रिक्शन की वजह से ही मैच स्टिक जो है वो जल जाती है। Now disadvantages. In the disadvantages, friction causes wear and tear of object or machine part. जैसे एग्जाम्पल क्या है, सोल ऑफ द ऑफ शूज़, और वी कैन से टायर्स wear off due to the friction, then we have to change them. जब आप लोग देखोगे जब सड़कें रफ़ होती हैं, तो जब आपकी नई गाड़ी के टायर हैं वो कैसे डिज़ाइन वाले, उसके ऊपर किस तरह से थ्रेड्स बनी होती हैं, तो उसको ग्रूव्स बोलते हैं, वो घिस जाते हैं। आपके नए जूते भी कुछ टाइम बाद घिस जाते हैं। तो जब सरफेस डैमेज होना शुरू हो जाता है उसको वियर एंड टियर बोलते हैं। तो वियर एंड टियर किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कॉजेज वेस्ट ऑफ एनर्जी, सो मोर पावर इज़ नीडेड टू ड्राइव दीज मशीन्स। फ्रिक्शन की वजह से क्या, फ्रिक्शन ने क्या करना है, अपोज करना है मोशन का। तो जितनी हम एनर्जी लगा रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या करता है, हमारा एनर्जी लॉस कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट अपोजेस मोशन सो इट वेस्ट फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में हम लोग फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। तो अगर मोशन को कम होगा, अपोज होगा किसी चीज़ को, अगर हम रोक रहे हैं तो हमने जो फ्यूल लगाया है वो ज़्यादा फ्यूल होगा, यूज़ करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूल की वेस्टेज हो जाएगी। इट बर्न्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच रन ऑन द करंट। जो करंट से जो चीज़ें चलती है, जैसे आपका पंखा है, मोटर है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, फ्रिक्शन क्या है, इनके जो रोटेट करने का जो सिस्टम है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये गर्म होनी शुरू हो जाएंगी फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन ने अपोज करना है और मोटर ने चलना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बर्न होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द नेचर ऑफ द सरफेस अफेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सप्लेन। द नेचर ऑफ सरफेस अफेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स। इफ सरफेस इज हार्ड एंड रफ, frictional force will be more. If surface is smooth, then the frictional force will be less. इसमें क्या है बेटा, कि सरफेस पे डिपेंड करता है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, फ्रिक्शन का अमाउंट कम होगा, और अगर रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा लगेगा। तो सरफेस का नेचर कैसा है, डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स कम है या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं, जैसे फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द सरफेस रफ और बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। और किसी ऑब्जेक्ट का हम कहेंगे वेट ज़्यादा है तो उसको हिलाने में, उसको मूव करने में भी हमें क्या है, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो क्या है उसका मास, या हम कहेंगे हाउ मच हार्डर दैट ऑब्जेक्ट विल प्रेस इट, और सेकेंड क्या है, दैट सरफेस शुड बी रफ। उसके बाद क्या है, फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीजेज, किस तरह फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज़ कैसे होगा, अगर हम सरफेस को स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। दूसरा हम क्या करें, ऑयल, पेंट या लुब्रिकेंट्स यूज़ कर लें, उससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और या फिर हम क्या करें, जो मूवेबल पार्ट हैं व्हीकल्स के या ऑटोमोबाइल्स के, वहाँ पे हम क्या लगा दें, बॉल बेयरिंग लगा दें, तो इन सब से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है, हाउ टू द लुब्रिकेंट्स और वाटर और ऑयल रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस।
देखो लुब्रिकेंट एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो रफनेस होती है सरफेस की उस और या इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसको फिल कर देता है। यही काम ऑयल और वाटर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ बिकॉज द irregularities on the surface will filled with the ice, water and oil or lubricant and makes the surface smooth. In this way friction will be reduced. Next question, what is fluid friction? Fluid means the mixture of air and water. So friction due to the air and water is called fluid friction. Next question, on which factor does fluid friction depend? How can we minimize fluid friction? So answer, fluid friction depends upon, number one is the speed with which the object is moving through the fluid, or second the nature of the fluid, थर्ड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग। इसका मतलब है कि अगर स्पीड व्हीकल की स्पीड और या ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्पीड विद द विच द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग थ्रू द फ्लूइड, कितनी स्पीड से फ्लूइड के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा है फ्रिक्शन ज़्यादा, अगर स्पीड कम है तो फ्रिक्शन भी कम है। फिर नेचर ऑफ द फ्लूइड, नेचर ऑफ द फ्लूइड का मतलब है कि फ्लूइड क्या है, डेंस है तो वो क्या है, थिक है, और अगर कम डेंस है तो वो क्या है, थिन है। नेक्स्ट द नेचर ऑफ फ्लूइड। अब नेचर ऑफ द फ्लूइड क्या है, तो थिकनेस और डेंसिटी से पता चल गया। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग। ऑब्जेक्ट की शेप जो है अगर स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन का मतलब है नैरो फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, बीच से जो है वो चौड़ा हो, ऊपर और नीचे से वो क्या है, पतला है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट जब मूव करता है फ्लूइड के अंदर तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अब है हाउ टू मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन। हम फ्लूइड फ्रिक्शन को किस तरह से कम कर सकते हैं। द फ्रिक्शन इन केस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कॉन्टैक्ट विद लिक्विड और गैस इज रिड्यूस्ड बाय मेकिंग the shape of object like a boat, or we can say streamline shape. In the streamline shape objects will be narrow at the top and bottom and broader at the middle. Next question, if the surface of objects are pressed harder while moving in a contact with each other, will the frictional force increase? Explain why with the help of example. यही क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी सरफेस है वो ज़्यादा नीचे प्रेस हो रहा है, हार्डर प्रेस हो रहा है मतलब, तो वो क्या है, क्या उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्या रीज़न है इसमें, क्या होता है, देखो अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, सरफेस को ज़्यादा प्रेस करेगा। इन द केस ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर with each other and the friction increases. As a result, the movement becomes difficult and interlocking is more on harder surface to increase the friction. तो ऐसे केसेस में इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा होगी। टेक द करेक्ट ऑप्शन है, you are asked to take a heavy machine for its regular servicing. Which of the following is the best option for carrying it? So if objects are heavy, then we will prefer to take the packet into the trolley only, because in the trolling that there will be rolling friction, and rolling friction is least. In second question, if the door hang squeak, that means it should be oily. Door hang means it is not opening properly, so we should oil and grease it. Next question, powder is sprinkled on the carom board. We are sprinkling the powder because to fill the irregularities on the board surface, and we will reduce the friction. Next you will see the diagram, fill in the gap. One side in that light object is there and other side heavy object is there. So in the light object we will push small, and in heavy object we will push big. So light object have less friction and heavy object have more friction. Next question, special shoes are to be worn to walk on melting ice. The sole of the shoes should have spikes on it. Spikes means little bits will be there, कुछ उभरा हुआ होता है इसमें, तो वो स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं, उसकी वजह से क्या है,
स्नो पे इजीली मूवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ रोड कवर्ड विद द आइस टुवार्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। देन ईस्ट डायरेक्शन है तो इन विच डायरेक्शन विल द फ्रिक्शन फोर्स। देखो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, तो कहाँ पे लगेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ऑन द आइस। देखो आइसी सरफेस पे क्या होता है कि देयर विल बी वेरी लेस फ्रिक्शन एंड व्हीकल्स विल मूव, and during the moving it will be slippery, so it is very difficult because vehicles will start slipping on the icy surface. Due to the less friction, vehicles are difficult to drive. What would happen if there were no frictional force in nature? If there is no frictional force in nature, then we will not be able to stand, write, walk or run. We will not be able to do any work, increasing or friction, because of marble floor force.